फर्स्ट वी डील विद थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट और प्रेशर में क्या फर्क होगा? हम थ्रस्ट किसको बोलेंगे और प्रेशर किसको बोलेंगे? थ्रस्ट इज द नॉर्मल फोर्स विच एक्ट्स. मतलब अगर हमने किसी कंटेनर में लिक्विड फिल किया है तो liquid exerts force perpendicular to the surface. So the normal force which is exerted on a surface by a fluid, normal force means perpendicular force. The normal force exerted by a fluid on the surface is called thrust. And that normal force per unit area is pressure. So force का component जो surface के perpendicular है divided by area, so that will be the pressure. Pressure की अपनी कोई direction नहीं होती. Pressure always acts perpendicular to the surface of container. So that's why we call it scalar. कि इसकी directional properties नहीं है, scalars की तरह ही होगा. नॉर्मल मतलब अगर हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो समटाइम्स प्रेशर इज ऑल्सो रेफर्ड एज टेंसर, बट हम +1 में उसको टेंसर की टर्म में नहीं करते. यूनिट्स क्या होते हैं प्रेशर के? एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉमनली यूज लेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एट द सरफेस ऑफ अर्थ. कि जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेशर लगाएंगे, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. And numerically it is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Torr में लिखेंगे तो it can be written as 760 torr, where 1 torr is 1 millimeter of mercury. बार में लिखेंगे तो प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, अगर हम बार की टर्म में लेंगे, केमिस्ट्री में टर्म यूज होती है बार प्रेशर के लिए 1.01 बार, बिकॉज बार इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस में लिखेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यू कैन राइट प्रेशर में सबसे पहले थ्रस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे. Whenever fluid is placed in a container, whenever fluid is placed in a container, the normal force exerted by liquid, normal force exerted by liquid at rest on a given surface, on a given surface is called is called thrust, is called thrust of the liquid on the surface. And thrust per unit, and the normal force exerted by liquid per unit area, normal force exerted by liquid per unit area is called pressure. So F perpendicular upon E. नॉर्मल बुक्स में अगर F by A भी लिखा है तो F by A का मतलब यही है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यूनिट्स अगर लिखेंगे तो कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन इज so 1 Newton per meter square is 10 dyne per centimeter square. Other commonly used unit of pressure are
Other commonly used unit of pressure are atmospheric pressure and torr, TORR. Atmospheric pressure and torr. And Newton per meter square is also known as Pascal. Another commonly used unit of pressure, atmospheric pressure and torr. Atmospheric pressure is defined as atmospheric pressure is defined as pressure exerted by the layers of atmosphere. Pressure exerted by layers of atmosphere at any given surface. Pressure exerted by layers of atmosphere at any given surface. At the surface of Earth, atmospheric pressure is equal to atmospheric pressure is equals to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. Sometimes you also write it as Pascal. $760 torr. So 1 torr किसके इक्वल हो गया फिर? अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखता हूँ 760 टॉर, तो 1 टॉर इज 1 क्या 1 millimeter of mercury, because एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 mm of mercury लिखते हैं ना. 760 mm of mercury मतलब जितना 760 millimeter of mercury प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है. Next you can write density. Density is defined as ratio of density is defined as the ratio of mass of the body and its volume. Density is defined as ratio of mass of the body and its volume. That is rho is equals to. That is rho is equals to. In SI kg per meter cube. Conversion क्या होती है इसमें? So 1 gram per centimeter cube is 1000 kg per meter cube. And this is also the density of water. कि water की density भी यही होती है. Either you can say it's 1 gram per centimeter cube or 1000 kg per meter cube.
नेक्स्ट टू राइट रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी? ratio of density Density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. at 4 degrees Celsius. So relative density. It is the ratio of. It is the ratio of relative density or specific gravity. It is the ratio of density of substance to the density of water. Density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. Density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. सो अगर किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी दी है 9, तो डेंसिटी इन एस से कितनी हो जाएगी? सीजीएस में कितनी हो जाएगी? अगर मैं किसी मेटल की रिलेटिव डेंसिटी 9 देता हूँ, तो डेंसिटी वुड बी 9000 kg per meter cube या 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ तो 1000 लेनी है या 1 लेनी है. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को आप लिख सकते हो, इट्स रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो यहाँ से हमारे मेन टॉपिक शुरू होते हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? क्या पढ़ा हुआ आपने पहले? आप पढ़ के आए हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को? सो कि जो जब हम किसी लिक्विड में मतलब लिक्विड या फिर से फ्लूइड में कह सकते हैं, जब हम किसी फ्लूइड में मतलब ऑक्यूपाई करते हैं सर, जो स्पेस वो बराबर होती है हमारे बॉडी के उसके मास के, जो उसका मास होता है जो डिस्प्लेस होता है. हमारे पास अगर एक बॉडी है, and it is partially immersed in a liquid. लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, बॉडी की डेंसिटी है रो. बॉडी का वॉल्यूम है V1 और जो इमर्स्ड पार्ट है दैट इज V1. तो जो बाहर है दैट वुड बी V माइनस V1. एक बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही है लिक्विड में. मैं आपसे पूछूं एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी कितना है? एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी. Weight of the body minus the thrust. कोई भी बॉडी फ्लोट कब करती है? जब उस पे Forward force is greater than the weight of the body. जब उस पे नेट फोर्स 0 होगी तभी फ्लोट करेगी ना. डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होती तो नीचे आ जाती, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होती तो थोड़ी सी बाहर आ जाती. अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका वेट बैलेंस हो गया अपवर्ड फोर्स के साथ, तो दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड buoyant फोर्स और अपथ्रस्ट. buoyant फोर्स जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड. टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी तो V है, बट इमर्स्ड पार्ट V1 है. तो इस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट करेगी
हम लेंगे कि इस पोर्शन में अगर लिक्विड होता तो उसका जो वेट है दैट इज द अपथ्रस्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, सो दिस विल बी द अपथ्रस्ट व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी। और बॉडी फ्लोट करती कब है, कंडीशन क्या होती है फ्लोटेशन की, ऐसे बॉडी कब फ्लोट करेगी, पार्शियली इमर्स्ड, बॉडी पार्शियली इमर्स्ड कब फ्लोट करती है, जब रो की वैल्यू सिग्मा से कम होगी। सेकेंड केस हमारे पास हो सकता है जहां पे रो सिग्मा से ज्यादा है, अगर रो सिग्मा से ज्यादा हो, अगर बॉडी डेंसर है तो ये बॉडी सिंक कर जाएगी। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है दैट इज फुली इमर्स्ड। तीसरा केस होता है जब दोनों की डेंसिटी सेम है, अगर लिक्विड की और बॉडी की डेंसिटी सेम है, इस केस में बॉडी कैसे फ्लोट करेगी, फुली इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड, सिंक नहीं करेगी बट इट विल बी फुली इमर्स्ड। अगर रो और सिग्मा इक्वल है, ये तीन केस हो सकते हैं फ्लूइड्स में सिर्फ। अगर हम पहले केस को देखें, इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स इज द वेट, वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, और अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी, बॉइंट फोर्स पूरे वॉल्यूम के कारण या इमर्स्ड पार्ट के कारण, Immersed part. तो इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम V1 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। इधर करेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स V रो जी, अपवर्ड फोर्स V सिग्मा जी। इनमें से कौन से दो केसेस में नेट वेट बॉडी का जीरो आ रहा है, थर्ड वाले में, फर्स्ट में भी, बिकॉज फर्स्ट में भी डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल है, तभी ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम है। इसमें तो सिंक करगी, इसमें दोनों में से ज्यादा कौन सा है, Weight. V रो जी ज्यादा है, V सिग्मा जी ज्यादा है, जीरो बिकॉज इसमें एक और फोर्स आ रही है इन एडिशन टू इट, नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का सम इसके इक्वल है, दैट मींस V रो जी इज ग्रेटर देन V सिग्मा जी। इधर भी ये बैलेंस्ड है, V रो जी एंड V सिग्मा जी इज 0। अच्छा, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, न्यूट्रल या अनस्टेबल? ये इक्विलिब्रियम तो है, नेट फोर्स 0 है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। मैं इसको अगर थोड़ा सा नीचे पुश करता हूं तो डाउनवर्ड फोर्स में कोई चेंज आएगा? मैं अगर इसे नीचे पुश करता हूं, सिर्फ यही बताओ, मैंने नीचे पुश किया, इसमें चेंज आया? No. नो, इसमें तो चेंज नहीं आया, तो टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी है। अच्छा, नीचे पुश किया तो V1 बढ़ा, Yes, sir. Yes. V1 बढ़ा, तो अपवर्ड फोर्स बढ़ गई, डाउनवर्ड उतनी रही। पहले ये दोनों इक्वल थी, अब अपवर्ड फोर्स बढ़ गई, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड, तो मैं जब छोड़ूंगा, तो मैंने इसको नीचे पुश किया, जब छोड़ूंगा तो ये वापस ऊपर आ जाएगा।
इस केस में मैं इसको अगर ऊपर लेके आता हूँ तो ये वापस नीचे आएगा या यहीं रह जाएगा? मैं इसको ऊपर ले आया तो कौन सी फोर्स जीरो हो गई? मैंने इसको अगर नीचे से उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई, वेट अब थ्रस्ट से ज्यादा था, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इसको अगर थोड़ा सा नीचे पुश किया तो क्या चेंज हुआ? वी रो जी चेंज हुआ, नो सर। वी सिग्मा जी। इन दोनों में से कोई फोर्स नहीं बदलेगी मैं इसको नीचे पुश करूंगा तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? नीचे करने से फोर्स नहीं बदल रही, पहले भी नेट फोर्स जीरो थे, अब भी नेट फोर्स जीरो है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दूंगा तो ये नीचे ही रह जाएगा, बिकॉज अभी भी नेट फोर्स जीरो ही है। अब इसको कहीं पे भी छोड़ दो लिक्विड के अंदर, ये वहीं रह जाएगा। अब दोबारा से देखो इसको, मैं इस ब्लॉक को अगर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर दूं तो ये वापस आएगा अपनी जगह पे, नो सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करने से ना तो वी रो जी बदला ना वी वन सिग्मा जी बदला। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? जहां छोड़ा वहीं रह गया, अनस्टेबल। न्यूट्रल। ऊपर लेके गए तो भी नीचे आ जाएगा, नीचे लेके गए तो ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों स्टेबल। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा तो ये अंदर आ जाएगा, अंदर लेके जाऊंगा तो बाहर चला जाएगा, बट इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट विल रिमेन। आप अल्टीमेटली इसी पोजीशन पे आके रुकेगा। इस केस में देखें, इसमें भी यही है, नीचे तो लेके जा ही नहीं सकते, ऊपर स्टेबल है, हॉरिजॉन्टली जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। इसको देखें, अगर मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो नीचे आएगा। मैं इसको अगर थोड़ा सा बाहर निकाल दूं तो वापस नीचे आएगा। Yes, sir. तो ऊपर लेके गया तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। नीचे न्यूट्रल, इधर न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल। देखो ये सारे डायग्राम समझ आ रहे हैं, फिर इसको लिखना है हमने। अब आपके रजिस्टर में अगर इतनी जगह नहीं है ना, सिर्फ यहाँ तो फर्स्ट डायग्राम बना लो, उसको लिख लेते हैं, फिर सेकंड बना लेना, उसे लिख लेना, फिर थर्ड। अगर है जगह तो बेशक ऐसे बनाए हैं तो ऐसे ही लिख लो। सो फर्स्ट इज केस वन। सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। सो पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखो सबसे ऊपर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट whenever a body is it states that whenever a body is partially or wholly immersed in a liquid, whenever a body is partially or wholly immersed in a liquid, it will lose a part of its weight. Whenever a body is partially or wholly immersed in a liquid, it will lose a part of its weight, and the loss of weight is equal to, and
the loss of weight is equal to weight of liquid displaced. Thus apparent weight of the body in liquid is weight in vacuum minus upthrust. If a body of volume V and density rho is fully immersed in a liquid of density sigma, then apparent weight in liquid is V rho G minus V sigma G. There can be three cases. First is case 1 when sigma is greater than rho. Body floats partially immersed It says body is floating. And apparent weight will be 0. Is greater than maximum upthrust which can act. Weight of the body V rho G is greater than maximum upthrust which can act, body will sink. Apparent weight is V rho minus sigma into G.
इसमें weight is balanced by when body is fully immersed. If rho is equals to sigma, then V is equals to V dash. And apparent weight will be 0. So, 3 केस हो सकते हैं, या तो बॉडी फुली इमर्स्ड होगी मतलब सिंक कर जाएगी, या फुली इमर्स्ड होगी, या पार्शियली इमर्स्ड होगी. So you can write a numerical. सर 1 मिनट ये नोट कर रहे हैं. ये सर हो गया. So you write a vessel contains oil of density 0.8 gram per centimeter cube. सर रिपीट कर दो. A vessel contains oil of density 0.8 centimeter cube over mercury. Over mercury. A homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and other half in the oil. Half of its volume immersed in mercury and other half in oil. Find the density of sphere. Find the density of sphere. हमारे पास ऐसे कंटेनर है, नीचे मर्करी है, ऊपर ऑयल है. एक स्फीयर इसमें फ्लोट कर रहा है.
इसका आधा वॉल्यूम मर्करी में है, आधा ऑयल में है। ऑयल की डेंसिटी दी है, मर्करी की आपको ऑलरेडी पता है कितनी, मर्करी की डेंसिटी, मर्करी की डेंसिटी इतनी वाली पढ़ते हो आप 760 mm ऑफ Hg, Hg की डेंसिटी, मर्करी की डेंसिटी। ज्यादा स्मार्ट नहीं हो आप सब लोग। 13.6 रट्टा मारो इसका, किसी पेपर में नहीं दी होगी, आपको याद होनी चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ मर्करी इज गिवन। हमें दिया है फ्लोट कर रहा है, कोई बॉडी फ्लोट कब करती है? जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। और फ्लोटेशन weight should be equal to upthrust due to oil plus upthrust due to mercury. Weight of the body V rho g. मर्करी में वॉल्यूम कितना है? V/2, ऑयल में भी V/2। तो मर्करी के कारण so that means you get rho is so density of sphere is 7.2 because आधा पार्ट ऑयल में है, आधा मर्करी में है, तो दोनों के कारण अपथ्रस्ट जो होगी that will be V/2 सिग्मा g। और हमें डेंसिटीज दी हैं, ऑयल की डेंसिटी भी दी है और मर्करी की भी दी है। देखो ये क्लियर है कि नहीं? सो वेट और अपथ्रस्ट को इक्वेट किया है। सर कल टेस्ट होगा? सॉलिड्स का होगा, परसों रख लेंगे, संडे को रख लो, एक दिन रख लो तैयार करने के लिए, संडे को टेस्ट रख देंगे। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे सर लिक्विड्स कोई एग्जाम कंटिन्यू। चल रहे हैं टेस्ट से। सबके नहीं चल रहे हैं ना, जिनके एग्जाम हो गए वो तो दे ही सकते हैं। बस और सर वो जो आप वीडियो अपलोड करते हो क्लास प्लस पे, उसको लैपटॉप पे देख सकते हैं? लिंक लेना पड़ेगा वहां से आपको, मतलब कॉपी हो जाता है मोबाइल से लिंक, और फिर वो लिंक के थ्रू चलेगा। है तो वो यूट्यूब पे ही है सारे, तो अनलिस्टेड है। प्रॉब्लम आएगी किसी लेक्चर में तो मेरे को बताना, फिर मैं लिंक दे दूंगा अगर आपको लिंक जनरेट करना नहीं आता तो। ओके।